everybody, mashallah, knows this and has been looking forward to this, especially me. तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको ये देना चाहूँगा कि हमने एक रिटेल समिट किया था, रिटेल शो इन December 2023, 2 years ago. And Shamun and I had a similar session in that conference, which was the third edition of where we're sitting today. और उसमें हमने कुछ बातें की and we had an enlightening conversation and Shamun, very candidly, openly talked about how he started Khadi in 1998 with a tiny store in Ozama, and along the way that 25-year journey up till then. तो हमारी यही चाहत थी कि हम उसी कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट आगे की बातें करें थोड़ी सी. ज़ाहिर 2 साल उसको गुजर गए, तो मैं चाह रहा था कि हम इसको करें, एंड शमून वेरी काइंडली gave his consent and was happy to do this. So we're looking forward to sort of going into a few more things and more focusing on sort of what you're doing now, and also a bit then we'll move into के future हम क्या आप किस तरह से देखते हैं, especially retail को और fashion retail को. So since we last spoke, you successfully rolled out, new experience stores. उस वक्त आपने डॉलमन में किया, फिर आपने I think लकी में किया, and then you this new concept that I think alhamdulillah a lot of you have probably visited now, and you've rolled it out in many places and different तरीक़ों से. It's not a cookie cutter approach also. So sort of wanted to sort of go straight into that, and then we'll zoom out a bit. तो ये how has the experience been, and what was the thought process behind it, और कैसे evolve हुआ है वो है उसके पीछे आप there's new stores mashallah and the experience centers. So how you're taking that forward, and what was the thought behind it actually, and how it's coming along? Thank you, Sandhya. Assalamu alaikum everybody. तो उसकी जो जर्नी थी, I don't remember अगर मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था या नहीं, बट वो एवोल्यूशन उसकी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि आई थिंक राइट बिफोर कोविड आई वेंट टू लकी मॉल. तो मैं अपने शॉप पे जा रहा था, किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था. तो बात करते करते मैं किसी एक नाम नहीं लूँगा, किसी एक कंपटीशन के स्टोर के अंदर चला गया था. होता है आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता, फिर आप फ़ोन रख देते हैं. तो उसके बाद कोई अबाउट 1-2 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि ये तो खादी का स्टोर ही नहीं है. तो फीलिंग वही थी जो दिसंबर में आती है, अक्सर आप गलत शादी में वॉक इन कर जाते हैं, 2-4 मिनट बाद पता लगता है तो शादी नहीं है. So at that time, I realized that every store in Pakistan had started looking similar. Same product, same experience, everything. So I think that's how the whole evolution started. And I think it's come a long way. I think still there's learning. So मैंने ये बात बिल्कुल लास्ट टाइम कही थी कि ये वर्ड जो है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस, हम इसको बड़ा लूजली यूज़ कर लेते हैं कि वो दिस इज़ अ कस्टमर एक्सपीरियंस है, ये है. सो फॉर मी these are two different words. That's the customer, and then that's experience. I think to develop a good customer experience, you have to understand your customer first. So और कोई भी ब्रांड अगर ये कहता है कि उसको अपने कस्टमर की समझ है ना, तो मेरे ख्याल से वो नहीं है. कस्टमर की समझ करने में तो सालों सेंचुरीज लग जाते हैं. आई थिंक इट्स एन इवॉल्विंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम भी गुजर रहे हैं, एंड जैसे जैसे वो हो रहा है तो वो चीज़ को हम उसके साथ वो कर रहे हैं. बट उससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई, एटलीस्ट फॉर आवर काइंड ऑफ ब्रांड. And obviously this theory will not apply for everybody, or maybe it will, I don't know, this time will tell. There's a clear need, like आज से 5 साल 6 साल पहले हम जब किसी से मिलते थे ना, तो एक रेस लगी हुई थी पाकिस्तान में कि कौन ज़्यादा स्टोर्स खोलेगा. मेरे 70 हो गए, मेरे 80 हो गए, मुझे 200 करने, मुझे 300 करने. So that is for sure, this is not how Pakistan retail is going to evolve in the future. This is how at least I feel. So locations are very important. There's always a pull and a push strategy in marketing. For a retail brand, I think it's always a pull strategy. It will never be a push strategy. For push strategy, the e-commerce platform is there to push your product. To pull your product, आपको अपना customer experience को continuously enhance करना पड़ेगा. I think the few good stores are about to come in the next few months. So I think it's come a long way. Yeah, absolutely. तो ये थोड़ा सा स्टोर की अगर बात करें जो आपने एक क्रिएट किया है, द कॉन्सेप्ट, तो उसमें आपने मुख्तलिफ चीज़ें की हैं, राइट? इट्स नॉट वॉल टू वॉल रैक्स, यू गॉट ओपन स्पेसेस ऑल्सो,
you've got green spaces or different spaces for, you know, from a visual perspective. It's not just product जो कि अक्सर हो जाता है. And also then there's the aspect of eating and spending time there and all that. तो वो थोड़ा सा बताइएगा what is the sort of, how is that evolving, or how is that coming along? I think it's working well for us. You know, as Sfindiyar, I said that this kind of a strategy will never work in a country like Pakistan if you want to open a lot of stores. This will only work कि जब आपको अपने ब्रांड की पोजीशनिंग को अगर थोड़ा सा आपको एक्सक्लूसिव करना होगा. For example, this tells me that maybe in Karachi I just need 3 or 4 stores. Lahore I just need about 4 to 5. So I don't need to open in Sheikhupura, you know. तो जो लोग शेखुपुरा में रह रहे हैं वो फॉर श्योर लाहौर आते होंगे. जब वो लाहौर आते होंगे तो उनके पास टू डू लिस्ट में एक होना चाहिए कि खाड़ी का स्टोर विजिट करें. एंड व्हेन दे विजिट द खाड़ी स्टोर द एक्सपीरियंस हैज़ टू बी सो गुड कि वो उनके लिए वर्थ इट हो. यू नो, अभी मुझे याद है बचपन में जब हम छोटा था तो इतना कोई ट्रैवल तो कभी नहीं किया था ज़िंदगी में. कभी कभार कहीं बाहर जाते थे. व्हेन आई वाज 17, 18, द फर्स्ट थिंग, लॉट ऑफ पीपल इन दैट एज की ट्रैवलिंग इतनी नहीं होती थी. ये होता होगा जब आप लैंड करते थे तो सबसे पहले जाके मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते थे. सो बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट यू ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड. इट वाज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान. बट अब आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई हैड दैट. सो आई थिंक दिस इज़ हाउ कस्टमर बिहेवियर इज़ दैट कि आपको उसको कैसे करना है. पाकिस्तान की डायनामिक्स मुझे कुछ ऐसी लगती हैं कि आपको अपने ब्रांड को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना ज़रूरी हो जाएगा. जो कुछ आज करेंगे लोग, कुछ मुझे लगता है इवेंचुअली सब इसी पे जाएंगे. एंड उसकी जो मेन वजह है ना, इट्स नॉट द ब्रांड्स फॉल्ट. आई थिंक इट्स मोर गॉट टू डू बिकॉज पाकिस्तान में एक रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रही है. फॉर एनी कंट्री, फॉर रिटेल टू इवॉल्व, द डेवलपमेंट, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल से ये डेवलपमेंट रुक गई है. अभी कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं कि दोबारा से शुरू हुई. Unless, you know, I mean, a like of Dolmen Mall or Emporium or Lucky और ये जो हैं सारे आपके जिन्होंने एक अच्छा काम किया है, ये पाकिस्तान में वाइडली अवेयर हो जाए, जो कि खुल सकते हैं. द पोटेंशियल इज़ देयर, द पीपल आर देयर. ऑब्वियसली देन इवेंचुअली उनकी बाइंग हैबिट्स भी चेंज होंगी. एंड द सेकेंड चीज़ जिस पर भी काफ़ी बात हो रही थी, जिसकी एक और वजह नहीं होने की, वो ये है कि द अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर इज़ नॉट हेल्पिंग इन दिस होल पूरे चीज़ में. अगर ये सब चीज़ें चीज़ हो जाती हैं, फिर आई वुड डेफिनेटली इन 2-3 years we can have a conversation के ये तो आपने पूरी बात चेंज कर दी उसके ऊपर. बट देन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर रिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ब्रांड ऑन इट्स ओन कुछ नहीं कर सकता. बिल्कुल सही बात है. आई थिंक टॉक अबाउट दैट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. तो स्टोर्स की चूँकि बात हो रही है तो एक और मैं स्टोर के बारे में बात करना चाहूँगा. एंड दैट इज़ ऑन 14 August यू लॉन्च्ड द ग्रीन हब इन मर्दान, राइट? उसके पीछे ज़रा कहानी बताएं. मुझे तो आपने थोड़ा सा अंदाज़ा दिया था पहले, बट आई थिंक एवरीबडी शुड सॉर्ट ऑफ हियर फ्रॉम यू थोड़ा व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट. और उसके बारे में थोड़ा सा आपको आप बताना चाहेंगे? आप बता दें. नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उसमें कोई स्पेशल बात है. अब वो स्पेशल बात आप बता दें, बेहतर है. आई थिंक थोड़ी जिद थी मेरे ख्याल से उसमें. सो एक टाइम पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा बात होती थी सस्टेनेबिलिटी, दिस दैट. सो आई हैव अ वेरी डिफरेंट perspective to this, to fashion. When we talk about fashion and sustainability, we always look at the West. When we look at the West, we talk about organic cotton, we talk about all these things, you know, this way fashion can be sustainable. So in a country like Pakistan, जहाँ पीने को साफ पानी का मसला है, जहाँ मेडिकल इश्यूज़ हैं, जहाँ एजुकेशन का इशू है, तो sustainability, I don't think anybody cares about wearing organic cotton clothes. So आई थिंक एक वो सस्टेनेबिलिटी करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि देखना कि आपके इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, तो उसके साथ काम करें. और आई थिंक कोविड का एक बुरा एक्सपीरियंस था कि जो कॉन्स्टेंटली वी ऑल वेंट थ्रू. एंड यू नो, एट दैट टाइम प्रॉब्ली वी यूज्ड टू हैव अ चैट एवरी सेकंड थर्ड डे. कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी ये हो रहा है. तो उस टाइम पे सोचा था कि वन डे आई विल ओपन अ स्टोर वेयर आई विल नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिक कनेक्शन. तो आई थिंक वो उस वक्त से एक दिमाग में बात आ गई थी. एंड देन हाउ इट इवॉल्व्ड. एंड आई थिंक अब उसमें जो लगता है मुझे भी, ऑब्वियसली बहुत अभी एक नया टाइम है, इसमें भी टाइम बताएगा और कि फिर सक्सेसफुल होना जस्ट बीन अ कपल ऑफ मंथ्स. बट वी आर मेकिंग अ मेजर ब्रांड स्ट्रैटेजी शिफ्ट in terms of how we're going to, how our retail is going to develop in the next few years. For all the new stores that we are opening, I mean पाकिस्तान में 2 बड़े clear cut segments हैं, एक है fabrics और एक है ready to wear. So all the new stores that we are opening, we don't have fabric
in that. So all those large stores are just the stores are curated to very too well, because I think that's where the future is. But at the same time, the market is still there. So if everything goes well, so I think eventually those big Khadi experience stores are going to convert into ready-to-wear, and this will be a sort of a brand. एक उसके अंदर जो है extension हो जाएगी for fabric, so we can differentiate both the customers, because I think they are very very different customers both of them. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये दो बातें अभी हमने शिमून ने की हैं. एक की है कि मर्दान का जो स्टोर है दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ ग्रिड रिटेल स्टोर इन द कंट्री. ठीक है जी, विच मीन नो इलेक्ट्रिक कनेक्शन. And every material that we use is through sustainable. All the material is sustainable. उसकी cost की बात नहीं करेगा वो थोड़ी सी वो हो गई, but obviously we going to learn and improve. But सब चीज़ें sustainable हैं, तो sustainability के जो चीज़ें वहाँ पे हैं localize होनी चाहिए वहीं से. Localized आपने की है, and the cooling I think also is a sustainable localized sustainable technique for cooling the store, and then of course daylight और सब कुछ और solar. तो ऑफ ग्रिड की बात की. दूसरी बात आपने अभी एक की विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन मार्केट में ये बात. स्टोर में स्टॉक रूम भी नहीं बनाया. स्टॉक रूम भी नहीं है. चले वैसे ऐसे स्टोर्स होते हैं तो दैट्स फॉर द फर्स्ट, बट द ऑफ ग्रिड वन इज द फर्स्ट फॉर श्योर. दैट्स ऑल अबाउट सप्लाई चेन, रोबस्ट सप्लाई चेन एंड फास्ट रिप्लेनिशमेंट एंड मेकिंग श्योर इट्स जस्ट इन टाइम एंड फेयर इनफ. दूसरी बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है विच इज समथिंग द मार्केट हैज बीन टॉकिंग अबाउट एक्चुअली रिसेंटली. मार्केट से बात जनरली मैंने सुना है, मेरे कानों में भी बात आई है कि आपने रेडी टू वेयर की बात की. लेडीज़ के अंदर, लेडीज़ वेयर के अंदर एटलीस्ट मैं तो आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट लॉट पीपल से कि यार अनस्टिच्ड इज़ द कॉर, और अनस्टिच में वॉल्यूम है और अनस्टिच ही बिकता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें शायद मार्जिन्स के चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं. बट तो विमेंस वेयर के अंदर स्पेशली अनस्टिच बहुत बिकता है पाकिस्तान में. तो अभी आपने एक बात की रेडी टू वेयर पे आपने फोकस करना है और रेडी टू वेयर के ऊपर आपने इसको रखना है. तो दैट्स अ बिग बेट टू प्लेस. उसके बारे में थोड़ा बताइएगा. तो उसका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ऑब्वियसली एक तो मार्केट इवॉल्व हो रही है, और जो लोग मुझे लगता है ऐसे सोच रहे हैं कि फैब्रिक्स है और ये है, सो आई थिंक 1-2 साल में कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा उनको. कस्टमर एक्सपीरियंस, यू नो, एंड दिस इज़ हाउ दिस होल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड. यू नो, वन डे वी वर हैविंग अ डिस्कशन विद अ टीम, एंड ऐसे एक तरफ हम बात कर रहे हैं कस्टमर एक्सपीरियंस, राइट. वी टेलिंग आवर कस्टमर ओके कम टू दिस प्लेस. वो आप उनको मॉल में लेके आ रहे हैं, आप उनको एक बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद व्हेन दे बाय समथिंग फ्रॉम यू, आप उसके बाद आप कह रहे हैं अब आप जाएं एक अनऑर्गेनाइज मार्केट में और जाके वहाँ पे उधर सिलवा लें. तो आपने एक्सपीरियंस के साथ क्या कर दिया. तो दिस इज़ हाउ द होल थॉट प्रोसेस स्टार्टेड. एंड देन आई कॉन्स्टेंटली आस्क माई टीम, मैं हमेशा पूछता हूँ, बैठे हैं काफ़ी सारे वहाँ पे, तो कि जो ये कस्टमर्स कपड़ा ख़रीदते हैं इसका क्या करते हैं. इसको पानी में फेंक देते हैं, इसको जाके घर पे फ्रेम कर देते हैं, या इसको खा लेते हैं. ऑब्वियसली दे गो एंड गेट इट स्टिच्ड, राइट. सो ऑब्वियसली देयर इज सम इनएबिलिटी इन अस दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड दैट सोल्यूशन. ठीक है, मल्टीपल रीजंस के क्यों है उसकी. एंड सो आई सेड लेट्स ओवरकम दिस. एंड उस पर जब डॉलमेन मॉल लाहौर खुल रहा था, वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर एट दैट टाइम. I said इसको रिस्क लेना है तो यहीं पे लेते हैं रिस्क इसके ऊपर. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन द एंटायर स्टोर. वी डिडंट हैव फैब्रिक, यू नो. एवरीबडी थॉट एट दैट टाइम कि गलती है, टीम में भी किसी ने नहीं इस वक्त इतना उस पर वो किया था. बट आई थिंक इट्स कम आउट वेल. एंड आई थिंक अभी फॉर एग्जांपल 4-5 और खुलने वाले हैं, दे ऑल विदाउट फैब्रिक्स. एंड दैट्स व्हाई वी सेड ओके नाउ फैब्रिक. अब फैब्रिक को अगर उसको सॉल्व तो करना है ना, ब्रांड की स्टोरी कैसे चलेगी. तो उससे फिर वो पूरा निकला था कि इसको ओके नाउ लेट्स टेक फैब्रिक इनटू अ मोर ग्रीन स्टोर सस्टेनेबल मॉडल. ताकि एक थोड़ी कि ब्रांड के लिए सिर्फ ये थोड़ी होता है कि आपने डिजिटल पे अच्छा सा ऐड चला दिया और आपने एक ब्रांडिंग कर दी. ब्रांड इज़ ऑल अबाउट द ब्रांड स्टोरी, राइट. तो ब्रांड हैज़ टू टेल, इवेंचुअली द ब्रांड हैज़ टू टेल स्टोरी कि मैंने कैसे बना. तो उसके लिए फिर हमने कहा ओके नाउ लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन फ्रॉम स्क्रैच एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ ग्रीन इनिशिएटिव फॉर फैब्रिक्स. नहीं, दैट्स फैसिनेटिंग बिकॉज हम आज भी जो बातें थोड़ी कर रहे हैं रिगार्डिंग ब्रांड, यू नो, बिल्डिंग अ ट्रू ब्रांड, नॉट जस्ट अ प्लेस टू सेल प्रोडक्ट. सो जो आपने बात की ना कि दीज सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स ऑब्वियसली दे आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड यू आर ड्राइविंग देम एंड यू आर ऑब्वियसली, उम्मीद तो सबको होती है कि यार कस्टमर उसके साथ कनेक्ट करे, उसको रेजोनेट करे उसके साथ, और फिर वो आएगा नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ अ ब्रांड, एंड यू नो प्राउड टू वेयर इट, proud to be a part of it. I think that is where the essence comes in. Of course, it's not for everybody. It will be for, you know, whoever is connecting. But I think
वन थिंग आई वांट टू कमेंट इज कि when we're looking at the new consumer की बात अक्सर हो रही होती है, Gen Z की बात अक्सर हो रही होती है. So there is a reality that, and not just for the Gen Z, I would say even people like, maybe not me, but generally, you want to be able to connect, and you still eventually you always want to connect with the brand, right? And there's something that you believe in, something you agree with. So I think that's something that obviously people Cardi like Cardi will hopefully will, I mean I've seen the response आ रहा है alhamdulillah. तो आपने एक बात की टीम के ऊपर, I want to come to that, then we'll take the discussion to a slightly different direction. कि टीम माशाल्लाह आपकी यहाँ भी आई हुई है और आपके पास माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है, एंड योर्स इज़ नॉट a conventional family business कि बेतहाशा लोग हैं, और वो बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक्चुअली फैमिली बिजनेस की. And I've been a part of family business. Many people in retail have been a part of family business, and it has its advantages, right? Many advantages. So Zaire, when you don't have that support or that advantage, then you need to look elsewhere. You need to build a team, and then building a culture, because खानदान में तो कल्चर एक ऑटोमेटिकली घर के अंदर डेवलप हो जाता है या एक बिजनेस के अंदर बैठते हुए सबके साथ बैठ हो जाता है. तो आपने कैसे उसको, और कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे उसको अचीव किया, एंड हाउ डू लुक एट इट, दैट होल टीम बिल्डिंग, बिकॉज इट्स ऑल दिस व्हिच यू आर डूइंग एंड Cardi has done becoming inshallah, it's not possible without if you don't for one person to do, right? असलियत आपने अभी उसका जवाब तो काइंड ऑफ दे ही दिया, बिकॉज कोई फैमिली नहीं थी मेरे साथ काम में, एंड एज सच तो वो आपको फोर्स कर दिया आपको ये चीज़ें करने में, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ग्रोथ यू नीड पीपल, राइट, एंड यू कांट ग्रो विदाउट पीपल. सो जब आपके पास नहीं हुआ तो वो एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट इस पे आ गया कि आई हैड टू सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनलाइज द कंपनी एंड प्रोफेशनलाइज इट अर्ली, बिकॉज थोड़ा सा आगे ग्रोथ और एटलीस्ट विजन के हिसाब से उसको करना ज़रूरी था. एंड आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर आर ग्रेट पीपल आउट देयर, एंड वो ज़रूरी थोड़ी है कि कोई आपका, मेरा एटलीस्ट बिलीव है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग इन दिस डायरेक्शन, आई हैव नो एक्सपीरियंस के, बट कि अगर कोई भाई होगा या कज़न होगा या कोई, तो वही चैम्पियन होगा. तो देयर आर लॉट ऑफ चैम्पियंस आउट देयर. सो आई थिंक उससे एक अच्छा वो हो गया, और इससे खुद ब खुद एक कल्चर डेवलप हो गया. एंड आई थिंक कल्चर डेवलप करने के लिए जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ना, वो ये होती है कि आप अपना इन ग्रोन टैलेंट को जितना ग्रो कर सकें उतना करें. लाइक I don't see any value in sort of going and poaching people from competition, because मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज़्यादा कुछ मिलता है. और जितना आप अपने ब्रांड्स अपने लोगों को खुद कोच करेंगे, खुद वो आपके साथ वो होंगे, आई थिंक वहाँ से आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं. दैट्स व्हाट वी ऑलवेज बिलीव्ड इन. सो लॉट ऑफ टैलेंट हैज़ ग्रोन इंटरनली, been here with us for 10 years, 12 years, 20 years, 25 years. And plus, as you scale up, you need different skill sets. And for that skill set, obviously the best thing is to go out there and get people, get professionals. और प्रोफेशनल्स लाने की सिर्फ दो चीज़ें होती हैं जिस पे प्रोफेशनल्स आपके साथ लंबा चलते हैं. उसकी दो होती है कि आपको उनको थोड़ी सी एम्पावरमेंट देनी होती है, और ग्रोथ के साथ उसको अटैच करना पड़ता है उनको. सो अगर वो दो चीज़ें आपको हो जाएं तो फिर वो हो जाता है. एंड देयर इज़ नथिंग बेटर. एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरह से बिल्ड होती हैं, आई फील दे लास्ट मच लॉन्गर देन दोज. एंड देयर इज नथिंग, एज आई सेड, द फैमिली बिजनेसेस एंड वो सब वो होता है, बट उसमें इवेंचुअली आई फील एक टाइम पे जाके एक जनरेशन के बाद एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है. सो बिकॉज मेरे साथ वो था, उस तरह से करना पड़ा तो वो हो गया. सो नहीं, very interesting, because I think this is one of the success stories of team building, in retail especially. तो अब थोड़ा सा I want to move on to the future perspective and get your views on sort of the fashion retail landscape, right? हमने कुछ बात की कल, हम जब बात कर रहे थे तो we talked आपने कुछ बातें की, and I think we want to cover a bit of that. इसके ये जो evolution हुआ है हमारे ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो आपको रिसेंट ईयर्स में कैसे लगी, एंड हाउ डू यू सी दिस मूविंग फॉरवर्ड, एंड व्हाट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट? आई थिंक हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे आ गए हैं इस वक्त. 25 से जो हम 26 में मूव कर रहे हैं, मुझे लगता है रिटेल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे. उसकी रीज़न ये है कि इफ़ आई लुक एट माई 26-27 ईयर जर्नी, आई कैन डिवाइड इट इनटू 1, 2, 3 फेजेस. द फर्स्ट वन वॉज जब 98 में शुरू किया था, उस वक्त कोई रिटेल का कॉन्सेप्ट नहीं था. आई थिंक सिर्फ एक बरीजे का ब्रांड था और कोई भी ब्रांड नहीं था. देयर वर कपल ऑफ डिज़ाइनर्स हु वर आउट देयर. मतलब उस टाइम की तो वो बात है कि आई थिंक जब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट देयर वाज नॉट इवन द रिक्वायरमेंट टू गेट योर सेल्फ टैक्स रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अ स्टोर. आई थिंक वो शॉप एक्ट एक होता था, उसके ऊपर आप कर लेते थे अपने आप को. तो मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ. तो द फर्स्ट 12-13 ईयर्स 98 से 2012 तक वॉज ऑल अबाउट डिस्कवरी एंड ब्रांड्स बन रहे थे और चीज़ें मार्केट डेवलप हो रही थी.
फिर एक टाइम आया 2012 का, आई थिंक, एंड आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू डॉलमेन फॉर दैट, बिकॉज आई थिंक वो पूरी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई पाकिस्तान रिटेल में, वो डॉलमेन मॉल कराची के खुलने से हुई. 12 से 18-19 तक was super growth years for retail, and I think the most amount of brand that were जो बने थे वो उस टाइम के ऊपर बने हैं, और जिन्होंने एक सर्टेन एक पीक अचीव किया, एक ग्रो करना शुरू किया. आई मीन ऑब्वियसली देयर मल्टीपल रीजन, आई थिंक वो थोड़ी भी बात भी हुई है उस टाइम पे. एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था रिटेल का, बट आई थिंक रिटेल ने उस पूरे टाइम को सही से कैपिटलाइज नहीं किया, बिकॉज एवरीथिंग वॉज न्यू, ग्रोथ वॉज न्यू, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़ है, और इंडस्ट्री बहुत नई थी उस टाइम. So एक ग्रोथ का फेस था. आई थिंक द लास्ट 4-5 years फॉर पाकिस्तान रिटेल हैज़ बीन काफ़ी टफ, एंड देयर हैव बीन मल्टीपल रीजंस फॉर दिस. आई थिंक जो कुछ होना था ना वो पिछले 5-6 साल में हो गया. आपका सबसे पहले 2019 में व्हेन योर टैक्स वो पॉस्ट वाला पूरा चेंज हुआ, एकदम से आपका टैक्स बढ़ के 6 से 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 16 हुआ. फिर उसके बाद 2020 में कोविड हो गया. यू नो, फॉर 1.5 year वीकेंड्स पे बंद, 6 बजे 8 बजे, तो रिटेल वॉज कंटिन्यूसली डिस्ट्रप्टेड फॉर 1.5 year. आई थिंक दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्टेड, जिसकी वजह से सारा आज तक वो प्रॉब्लम चल रहा है. आई विल कम टू दैट इन अ मिनट. उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्टेड गोइंग अप फ्रॉम 20, आपका 22% पे हो गया. इन्फ्लेशन वी टॉक्ड अबाउट, अभी आई हर्ड टॉकिंग अबाउट कि 38-40% पे इन्फ्लेशन चला गया हमारा. कमोडिटी हमारी सब बढ़नी शुरू हो गई. टैक्सेस ऑन सैलरीड क्लास व इंक्रीज, विच आई थिंक विच इज़ आवर बिगेस्ट कंज्यूमर, बिकॉज ऑब्वियसली आपने वहाँ पे उनका बाइंग पावर कर दिया. इलेक्ट्रिक रेट्स बढ़ने शुरू हो गए. डॉलर वेंट फ्रॉम आई थिंक 130-140 से 280 विद इन अ स्पैन ऑफ year and a half. But I think everything happened in the space of 4 to 5 years, and I think this is what the country and these companies are all about. We were very resilient, and I think everybody has sort of passed through that stage. एक दो चीज़ें हमने गलत की हैं उसमें, जो हमें जिस पे मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा एक दो नहीं है. You being generous. Okay, so I think now with 25 ending, when I look at it, you know, at least I can say कि यार at least अल्लाह को बेहतर पता है कि, बट मुझे नहीं लगता कोई पेंडेमिक होने वाला है अगले कुछ सालों तक. अल्लाह बेहतर जानता है, बट नज़र नहीं आ रहा मुझे इस वक्त जो है ना. I don't think the interest rate in the near future are going to go to 21-22%. I think commodity, dollar, overall, but पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है. बट अभी मुझे ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ हुई ना, ये मुझे इसमें एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है. And I think this 2-3 years is a very, very good window for retail to sort of correct what we did wrong in the last 5-6 years. And it all started with COVID. How did it happen? Because COVID हुआ था मार्च के महीने के ऊपर. That was about 20 days before Ramzan. हर ब्रांड जो था ना उस वक्त अपनी मैक्सिमम इन्वेंट्री के ऊपर बैठा हुआ था. हम एक सुपर ग्रोथ ईयर्स में चल रहे थे. एवरीबडी हैड ग्रेट होप्स फॉर 2020 एट दैट टाइम. आई रिमेंबर उस वक्त जो हमारा 1-1.5 साल ख़राब हुआ, उसके बाद से आई थिंक अ लॉट ऑफ ब्रांड्स केम अंडर अ लॉट ऑफ कैश फ्लो प्रेशर्स. एंड टू रिटेल में कैश फ्लो मैनेज करने का बड़ा आसान है, डिस्काउंट लगाएं कैश फ्लो मैनेजर. And I think we went into a super cycle of discounting, you know, where we said brand, no, brand क्या है, बस वो है. उसके बाद नेक्स्ट फेज में लाइक यू नो, पहले हम लोग करते थे कि जी कौन ज़्यादा स्टोर खोलेगा. एक पाकिस्तान में एक सॉर्ट ऑफ एक टॉप लाइन ग्रोथ के ऊपर एक वो हो गया, बट वो टॉप लाइन ग्रोथ किस कॉस्ट पे आएगी किसी ने उस चीज़ को एनालाइज नहीं किया. आई मीन अगेन माई टीम इज सिटिंग देयर. 2 years ago I called them in and I said, we're not going to be number 1, we're not going to be number 2, we're not going to be number 3 in Pakistan. Because I feel the number 1, number 2, number 3 brand are just going to make themselves glorified wholesalers. And that's what not retail is all about. That's what not brands are all about. Brand is about creating perception. Brand is all about, you know, as आपको मैंने कहा, is about telling stories. Brand is a lot more than just top line sales. You know, top line sales आपको 1 साल 2 साल, I mean, there's nothing wrong with top line sales. I mean, I hope every retailer, I mean, at least I want to see at least 20-25 retailers get to a 100 billion, 200 billion mark in the next 10-15 years, and there's potential in this country कि अगर एक दो चीज़ें हम थोड़ी ठीक कर दें तो ये 100-150 बिलियन के तो 10-20 ब्रांड यूँ बन जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हाउ वी डूइंग इट नाउ. तो आई थिंक ये मुझे लगता है 2-3 साल की विंडो है कि जिसमें हम अगर अपनी चीज़ों को ठीक कर लें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिटेल में एक वो हो जाएगा. यू नो, so and you know, I mean, क्या होता है for most companies, you know, this is how I see it. And again, there's nothing wrong with it. It's top line sales, profit, and brand. I feel if you are a brand owner, you know, there's nothing better than that.
तो it should always be brand, then profit and then top lines. That's my equation is. And I think ये क्योंकि ये opportunity मिल रही है, इसको avail करना चाहिए इसके ऊपर, और इसको इसी context में इसको solve करना चाहिए, because I think top line sale कोई भी पाकिस्तान में कर सकता है. 365 दिन होते हैं, 367 डेज सेल लगाते हैं, हो जाएगी. बिल्कुल सही बात है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो हम डिस्कस करते रहते हैं, बट आई थिंक दिस इज समथिंग वी नीड टू रियली थिंक अबाउट कि रिटेल में हमने बिजनेस को किस तरह से मेजर करना है, सक्सेस को, रिटेल सक्सेस को. एंड आई कम्प्लीटली इंडोर्स दैट पॉइंट, बिकॉज सक्सेस को हम टॉप लाइन सेल्स, नंबर ऑफ स्टोर्स की आपने बात की, दिस इज अ रेस दैट वी हैव ऑल बिन इन, एंड आई थिंक वी नीड टू रीथिंक दैट. Just to the last. So it was number of stores, top line sale. Yeah. If you don't fix it, it will be nice. Okay यार, मैंने 325 दिन सेल लगाई, मैं ज़्यादा बड़ा ब्रांड हूँ. हम अब उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. तो अब थोड़ा सा लास्ट थिंग, टाइम इज अप, बट आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में you're known and that's very interesting. आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब हम देखते हैं तो there are different sort of roles, not just designations, there's roles that I've seen. So you are the founder of Khadi and the dreamer. So I want to just get your view on आपका, for fashion retail, retail in Pakistan, just even your organization, what dream do you see? What is your dream, if you can articulate that, in the whatever way you want to? As I said, that retail in Pakistan has tremendous potential. I mean, the way I look at it, आप पूरी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करें और रिटेल को डॉक्यूमेंट कर देंगे ना, तो आपकी पूरी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी. ठीक है, खुर्रम साहब, याया साहब को सैलरी मिलती है, कंप्लाइंट हैं, टैक्स कट के सैलरी मिलती है, बट जिस दिन जाके ये कहीं पे जाके कहीं से ऐसी जगह पे कुछ चीज़ ले लेते हैं जो कि नॉन कंप्लाइंट है, तो इनकी सैलरी वापस नॉन कंप्लाइंट में चली जाती है. सिमिलरली अगर पूरे किसी के पास नॉन कंप्लाइंस हो, मतलब नॉन कंप्लाइंट में कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई सैलरी क्लास पे टैक्स ना हो, 1 मिनट के लिए, राइट, एंड रिटेल का सारे पॉस डॉक्यूमेंटेड हो, तो जितने भी लोग हैं वो सारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा. तो आई मीन इन टर्म्स ऑफ माई ड्रीम एंड विजन, आई थिंक दुनिया में कोई मुल्क की ब्रांडिंग विदाउट दिस नहीं हो सकती. आप कर ही नहीं सकते. कोई दुनिया का मुल्क बगैर टूरिज्म के अब नहीं चल सकता. कोई दुनिया के मुल्क ने तरक्की नहीं की बगैर टूरिज्म के. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रिटेल एंड आई टॉक अबाउट द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, I just don't talk about fashion, it's food, it's entertainment, it's tourism, it's all of this. I think this is a low-hanging fruit in Pakistan. अगर मैं तो बोलूँ इस वक्त मैं अपना सारा फोकस इसको लगा दूंगा कि इसको किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ. मेरे पास टूरिज्म भी आएगा, मेरे पास डॉलर्स का इन्फ्लो भी होगा, मेरे पास इकोनॉमी भी डॉक्यूमेंट होगी, मेरे पास कंस्ट्रक्शन भी होगी. कराची शहर के अंदर 8 मॉल बन सकते हैं. दुबई के अंदर 2 मिलियन की पॉपुलेशन के ऊपर देयर आर अबाउट गॉड नोज हाउ मेनी मॉल्स, एंड लुक एट द साइज ऑफ दोज मॉल्स. इट्स 2 hour फ्लाइट फ्रॉम हियर, एंड ऑल ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ रिटेल. सो अगेन इन टर्म्स ऑफ अ विजन फॉर myself and for my company or for the country, I want to see Pakistan transform into that. And I strongly feel this cannot happen till we change the entire infrastructure. And retail obviously will play a the fashion retail, the people sitting in this room will play a small role in that. बनने पड़ेंगे पाकिस्तान में. आप पाकिस्तान को जिस दिन 30-40 मॉल्स बना देंगे, वैसे ही आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होनी शुरू हो जाएगी. आपके खुद ब खुद पाकिस्तान में इस पर सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो अपॉर्चुनिटी है अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप. विद सच अ यंग पॉपुलेशन, विद पॉपुलेशन ग्रोइंग, पाकिस्तान की कोई मुझे एक दफ़ा बता रहा था कि ऑलमोस्ट हर साल 5 मिलियन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है. Now that's the population of Qatar. So we are adding 1 Qatar to our country every year. In 6 or 7 years, I think our population increases by 40-45 million, right? And 7-8 years, उसका जो multiplying effect आएगा. तो हम एक सऊदी अरेबिया ऐड कर रहे हैं हर 5 साल में. Now look at the opportunity that we have in the future, and we just fix these things. सर पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट भी आएगा, पूरी दुनिया यहाँ पे देखेगी. एंड आई थिंक हैविंग सो मच पॉपुलेशन अराउंड इज़ टू आवर एडवांटेज राइट नाउ. हम उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं. आई थिंक दिस फ्रंट एंड, दिस ब्रांड बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान विच रिटेल कैन प्ले, द होल इकोसिस्टम ऑफ रिटेल कैन प्ले. आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू सी कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है. पाकिस्तान में एक दुबई मॉल से बड़ा मॉल क्यों नहीं बन सकता.
That's the. बिल्कुल सही एंड हम तो खैर बातें करते रहेंगे और कर सकते हैं बट डोंट वांट टू टेक ऑल दिस मोर टाइम बट दैट्स अ ग्रेट नोट टू एंड ऑन एंड थैंक यू Thank you. for Thank you sharing very your much. thoughts as always and so openly and thank you all for attending शुक्रिया